Hello, fellow traders, and welcome to the fourth chapter of Supply and Demand Masterclass. And this will be about FTR strategy. Okay, and FTR मतलब failure to return. And इसको second power pattern भी कहते हैं price action family का. Okay. Okay, so what is FTR? The second power pattern. FTR stands for failure to return. ओके एंड एफ टी आर इज़ द सेकेंड पावर पैटर्न आफ्टर आर बी एस एंड एस बी आर. सो जैसा कि अगर आपको याद होगा पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था आर बी एस एंड एस बी आर सेटअप. ओके कि अगर कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर प्राइस तोड़ता है और उधर एक सप्लाई या डिमांड एरिया बनाता है, ओके सो वी वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट टू दैट सप्लाई या डिमांड एरिया एंड देन वी सेल और बाय फ्रॉम देयर. राइट, इट वॉज वेरी सिंपल setup. And this is like in SBR and RBS setup, there was a single break in market structure, either on the upside or downside, if you remember. Okay, but in FTR, there are two market structure breaks, and we will see how. And fourth point is that this is a very powerful trend continuation strategy. So if a price, a certain index is trending nicely, then we can find a good entry using this particular strategy, which is called FTR, failure to return. Okay, so what is FTR? What actually is FTR? FTR means failure to return. But wait, who wants to return? You may ask कि कौन आना चाहता है, कहाँ से आना चाहता है और क्यों भाई फेल हुए वो. सो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि अगर प्राइस एक सर्टेन बैरियर तक जाता है, ओके वो सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, तो प्राइस वहाँ से बाउंस करता है या फिर उसे तोड़ता है. दो ही चीज़ कर सकता है. और अगर प्राइस अगर उसे तोड़ता है तो दो पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं कि प्राइस उस लेवल को तोड़े और वापस आए उस लेवल की तरफ और सीधा जाता रहे. ओके, सेकंड सिनेरियो, प्राइस उस लेवल को तोड़े एंड वापस उस लेवल तक आने के लिए फेल हो जाए और जिस डायरेक्शन में प्राइस ने उस लेवल को तोड़ा है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहे. So in the later scenario, in the second scenario, an FTR is made, and an FTR level is of vital importance, and it is very important to be able to identify it. Why it is very important? Because there is such a strong buying or selling pressure, also known as supply or demand, at the FTR level, that the price just cannot return. It must go on the same direction of the break. So it is extremely powerful. Okay. So now let's look at the anatomy of a demand FTR. Okay. So as you can see, the price is going up and then ये थोड़ा retrace करता है. Okay. And then what it does, it makes a high. We will call it high number 1. Okay. Then what it does next, then it goes up again. And ये दोबारा यहाँ से rejection लेता है. That means it is a resistance. Okay. It is a good resistance point. Then what the price does next, price breaks through this level and breaks it massively. Okay, इसका मतलब है तो पहला हाई ब्रेक हो चुका है एंड प्राइस देन क्या करता है, प्राइस दोबारा रिट्रेस करता है एंड इट व्हाट इट डज, इट मेक्स अ हाई नंबर 2. ओके, ऑल्सो हायर हाई, यू कैन ऑल्सो कॉल इट हायर हाई. ओके, सो प्राइस एक और हाई बनाता है एंड देन व्हाट द प्राइस डज, प्राइस कुछ देर कंसोलिडेट करता है, मतलब कि एक बेस बनाता है. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट मूव बूम, ये प्राइस दूसरे हाई को भी तोड़ देता है. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैसिव मूव. सो दैट मीन्स प्राइस हैज ब्रोकन द टू हाइज. इट हैज गिवन टू ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर्स. प्राइस ने दो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिए अगर आप देखेंगे तो, पहला हाई तोड़ा एंड देन दूसरा हाई तोड़ा. ओके, एंड देन व्हाट हैपन्स नाउ, एफ टी आर डिमांड FTR इज फॉर्म्ड. ओके, एज यू कैन सी द लाइन्स हियर, द डैशेस हियर, दिस बेस is a demand FTR. Okay, if you have any questions, you can ask in the comment box or contact me directly. Okay, so what we are expecting the price to do, okay, as you can see, this is the FTR demand FTR zone. Okay, so what we are expecting, the price will come back here, retrace back to this level, and we will go long from this level. Okay, as you can see, just like this. Okay, and here will be our entry and our stop loss. Okay, and this will be the level we will buy from. Okay, this is very simple, right? And I hope you understand it, the anatomy of demand FTR. So now let's look at the two types of demand FTR. We have two examples in front of us.
सो पहला एग्जांपल देखेंगे, अगर तो प्राइस ऊपर जा रहा है एंड प्राइस ने हाई वन बनाया, देन प्राइस ने हाई वन तोड़ा एंड हाई टू बनाया, देन प्राइस ने रिट्रेस करा एंड कुछ देर कंसोलिडेट किया और बेस बनाया एक, ओके, एंड देन प्राइस ने हाई टू लिया, ओके। सो जब बेस बना के प्राइस ने हाई टू लिया तो एक एफ टी आर जोन बन गया, ओके। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो तो हाई वन और हाई टू के बीच में है एफ टी आर जोन, एंड सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे तो प्राइस ने सेम चीज़ की है, पहले पहला हाई तोड़ा है, फिर दूसरा हाई बनाया है, फिर एक एफ टी आर जोन बनाया और फिर दूसरा हाई तोड़ा है, ओके। एक जोन बनाया मतलब कि एक कंसोलिडेशन जोन, एंड देन हाई टू तोड़ा है, एंड हाई टू तोड़ने के बाद एफ टी आर जोन रेडी है, बट एफ टी आर जोन फर्स्ट में हाई वन और हाई टू के बीच में है एंड सेकेंड में हाई वन और हाई टू के नीचे है। सो इट डजेंट मैटर, हमारे रूल्स ये हैं कि एक हाई बनाए प्राइस, उसे तोड़े, फिर सेकेंड हाई बनाए, उसके बाद एक बेस बनाए और उसे सेकेंड हाई को तोड़े, तो हमारा एफ टी आर तैयार है, ओके। एंड दैट्स व्हाट द प्राइस हैज डन इन बोथ द एग्जांपल्स, so both are great examples, and let's move on. So these are the five simple rules of FTR demand. H1 is formed, then H1 is broken, then H2 is formed, then the base is formed, then H2 is broken, and hence demand FTR is formed. Okay, it's very simple. So now let's look at the anatomy of a supply FTR. Okay, so as you can see on the screen, the price is coming down and the price retraces a little. Okay, जब ये थोड़ा सा retrace करता है तो ये बनाता है एक low, and हम इसे कहेंगे low one. Okay, then what the price does? Price falls down again massively, and जब ये नीचे गिरता है तब ये low one को तोड़ता है. Okay, then price retraces back again, and which creates a low two. Okay, and now what the price does? Price एक कुछ टाइम के लिए रेंज करता है एंड बनाता है एक बेस, ओके। एंड जब ये बेस बना के लो टू को तोड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके, दैट मीन्स अ सप्लाई एफ टी आर इज फॉर्म्ड, ओके। एंड एज यू कैन सी द पैरामीटर्स, दिस इज द एंट्री, this will be our entry, the beginning of the supply, and the stop loss will be little bit above the highs, okay. And what we are expecting, we are expecting the price to fall massively from here, okay. This is very simple and I will soon explain it to you on the charts. तो हम जल्द ही अभी चार्ट पे चलेंगे and I will explain to you both the demand FTR and supply FTR. So let's move ahead, guys. So these are the 5 rules, and this is just like a mirror of the FTR demand zones. L1 is formed, and as you can see, L1 is broken to the downside, L2 is formed, and the base is formed, and then low 2 is broken. And once the low 2 is broken after the base is formed, the supply FTR is formed, okay. And these are the two types of FTR supply pattern, and as you can see, the first low is broken, and then the second low is formed, and then base is formed, and the second low is broken. एंड इसमें जब एफ टी आर जोन जो बन रहा है वो लो वन एंड लो टू के बीच में बन रहा है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में जो एफ टी आर जोन बन रहा है वो लो वन एंड लो टू दोनों के ऊपर बन रहा है. सो लाइक जस्ट लाइक द एग्जाम्पल इन द डिमांड पैटर्न, देर इट डजेंट मैटर एफ टी आर बन रहा है, हमारे रूल्स ही कहते हैं कि पहला लो टूटना चाहिए, ओके, एंड देन बेस बन के दूसरा लो टूटना चाहिए, है ना. और दोनों एग्जाम्पल्स में ये हो रहा है. सो these are both amazing patterns, both valid, okay guys. And now let's look at euro USD 1 hour chart, okay. we for this ये पहला एग्जांपल है डिमांड FTR का, okay. so just like you see here, first thing we see प्राइस ने पहला हाई तोड़ा है, देखिए, okay. so price broke the high number 1, okay. then what it did, इसने थोड़ा रिट्रेस किया प्राइस ने, ओके. देन व्हाट द प्राइस डिड, एज यू कैन सी, इट ब्रोक द सेकंड हाई आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस, ओके. अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्राइस ने बेस बनाया है, ओके. इट्स ऑब्वियस, राइट. नाउ वी सी दैट द प्राइस हैज ब्रोकन फर्स्ट हाई एंड द हाई नंबर 2. so our demand FTR has been formed, okay. so what the price should do, price should come here down and go back up, okay. so what we are going to do, we will just place up our pending order here, okay, and our stop loss below this high, sorry, below this low, okay.
and our target will be at least 13 RR, but in this case we will target here, okay, at this high, because we are expecting the price to mitigate this level and break this high also, okay. Okay, now let's see what happens. Price is taking its time. Okay, now it's here, our trade is active. Okay, now as you see, our TP is hit. Okay, so let's recap fast. Okay, the price was going up, ठीक है, प्राइस ने रिट्रेस किया, प्राइस ने एक हाई तोड़ा, ओके, तो प्राइस ने पहला हाई तोड़ा, ओके, सेकंड टाइम व्हाट हैपन, प्राइस ने रिट्रेस किया नीचे एंड प्राइस ने सेकंड हाई तोड़ा, दैट मीन्स अ डिमांड एफटीआर हैज़ बीन फॉर्म्ड, ओके, एंड यहाँ पर हमारा बेस है, ओके, एंड वी प्लेस आवर पेंडिंग ऑर्डर हियर एंड टीप इट. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल सप्लाई एफटीआर का. ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ से, राइट, एंड देन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने पहला लो तोड़ा, ये देखिए, राइट, सो प्राइस ब्रोक दिस लो, ओके, देन प्राइस ने रिट्रेस किया एंड प्राइस ने दूसरा लो बनाया, ओके, लेट मी राइट हियर लो 1 एंड दिस इज लो 2. ओके, सो प्राइस ने वापस रिट्रेस किया एंड देन प्राइस ने लो नंबर 2 तोड़ा, एज यू कैन सी हियर, राइट, द लो हैज़ बीन ब्रोकन नाउ. सो एंड सप्लाई एफटीआर हैज़ बीन फॉर्म्ड, अ सप्लाई एफटीआर, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहला लो टूटा, उसके बाद प्राइस ने बेस बनाया. बेस मतलब ये देखिए, ये जो कैंडल्स होती है जिनकी बॉडी छोटी होती है एंड विक्स होती है बड़ी बड़ी, तो ये कैंडल्स कहलाती है बेस कैंडल्स, मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई है. ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे बेस कैंडल्स हैं. ओके, सो प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने ऊपर गया, पहला लो बनाया, पहला लो तोड़ा, फिर ऊपर गया, रिट्रेस करा, फिर नीचे आया, सेकंड लो तोड़ा. जब इसने सेकंड लो तोड़ा उससे पहले इसने बेस बनाया. ओके, सो दिस इज द बेस एंड यहाँ पर एक सप्लाई एफटीआर फॉर्म हो चुकी है. ओके, okay, so now what we are expecting, we are expecting the price to come to this base area, okay, and then we are looking for at least 1-3 risk reward. Okay, so here you can just, we will put our stop loss here and we will go for 1-3 risk reward. Okay, सो नाउ आई होप आप समझ चुके हैं, पहला लो टूटा था, प्राइस ऊपर रिट्रेस करके बेस बनाया, सेकंड लो तोड़ा, मतलब कि सप्लाई एफटीआर, जैसा कि मैंने समझाया था आपको कुछ ही देर पहले. ओके, सो वी सी हियर आवर ट्रेड इज एक्टिव. सी द प्राइस यहाँ पर आया, इसको मिटिगेट किया एफटीआर को, एफटीआर जोन को. ओके, ओके, तो सेकंड टाइम आया प्राइस, जिनने ब्रेक इवन किया था प्राइस को, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पर देखो अब नीचे जाते ही प्राइस को ब्रेक इवन कर दिया होगा, है ना, एंड जैसे ही ब्रेक इवन किया, प्राइस ऊपर आया, वापस उनका ब्रेक इवन लिया प्राइस ने, लिक्विडिटी, और दोबारा से फॉल किया एंड टीपी इट. सो दैट्स वाई वी डोंट ट्वीक अ ट्रेड टू मच. ओके, ट्वीक अ ट्रेड एज लिटिल एज पॉसिबल, उसे ट्रेड को लगाओ और भूल जाओ. ओके, आई हैव शोन 2 एग्जांपल्स नाउ ऑफ डिमांड एफटीआर एंड सप्लाई एफटीआर ऑन यूरो यूएसडी. ओके, okay, so now let's look at GBP USD 1 hour chart at an example of supply FTR. Okay, so as you can see, this is the classic example. Okay, so as you can see, अगर सबसे पहले प्राइस ने एक लो तोड़ा, राइट, प्राइस नीचे आ रहा है एंड प्राइस ब्रोक दिस लो. ओके, वी विल कॉल इट लो नंबर 1. ओके, फिर अगर आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया, पहला लो तोड़ा, फिर प्राइस ने दोबारा रिट्रेस किया, राइट, दिस इज क्लियर. ओके, एंड जब प्राइस ने दोबारा रिट्रेस किया तो प्राइस ने एक बेस बनाया. ओके, ये देखिए, इस कैंडल की बॉडी इन कैंडल्स की छोटी है एंड विक्स बड़ी है, राइट, सो दीज आर द इनडिसीजन कैंडल्स. यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई थी. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, सेलर्स जीत गए. ओके, तो आप देखिए वापस सेलर्स जीत गए एंड वापस प्राइस को नीचे धकेल दिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई एफटीआर एज वी स्टडीड अर्लियर, राइट. तो नाउ व्हाट वी विल डू, क्योंकि प्राइस ने बेस बनाया, देखिए पहला लो तोड़ा, नीचे गया, रिट्रेस किया, बेस बनाया एंड देन दूसरा लो तोड़ा. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेकंड लो इज ब्रोकन, राइट.
एंड लो 2 इज ब्रोकन. सो इसका मतलब है एक अच्छी सप्लाई एफ टी आर हैज़ बीन फॉर्म्ड. ओके, सो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट प्लेस द पेंडिंग ऑर्डर ओवर हियर. Okay, a little above this high, our stop loss, and then we will go for a 1 to 3 risk reward ratio, or depending on the market structure we can go for higher risk reward. Okay, so we see what is happening. Okay, price is coming towards our entry and price made this low. Okay, so we will just extend our TP here. Okay, almost 1 4 hour. Depending on market structure we take profits. Okay, now see what happens. Okay, price comes, mitigates, our entry is active, and then TP hit. So this is a classic example of a supply FTR. I hope I made this clear. Okay, and now is an example of a demand FTR on the same chart, GBP USD, but on 15-minute chart. Okay, to make the picture look more clear. Okay, so what the price did, as you can see, the price was coming up, right, and then it made a high. So we will name it high number 1. Okay, so what the price did, price broke this high. See, right, price broke this high, then price made some kind of retracement. Okay, you see यहाँ पर ये हाई तोड़ा प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया. ओके, देन व्हाट द प्राइस डिड, सी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी बेस कैंडल्स बनाई है, राइट, ये देखिए आप. ओके, लेट मी शो, आई विल एक्सप्लेन क्लियरली. इट इज़ अ डिमांड एफ टी आर, फर्स्ट लेट मी राइट. ओके, सो प्राइस ने देखिए आप यहाँ पर काफ़ी सारी बेस कैंडल्स बनाई है. बेस कैंडल्स मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई है काफ़ी. ओके, देखिए, राइट, ये इन डिसीजन कैंडल्स है जिनकी बॉडी एकदम छोटी होती है और विक्स बड़ी होती है बॉडी से बहुत. इन्हें कहते हैं बेस कैंडल्स. लाइक हमने पहले स्टडी किया था पिछले चैप्टर्स में. एंड सो हमने ये पूरा एरिया मार्क कर लिया. ओके, सो ये हमारी है, यहाँ पर एक बेस बनाया प्राइस ने फर्स्ट हाई तोड़ने के बाद. ओके, सो व्हाट द प्राइस डिड नेक्स्ट, बेस बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया और आप देखेंगे तो प्राइस ने ये सेकेंड हाई भी तोड़ा. राइट, आप देखेंगे ऊपर इसने हाई तोड़ा है. दैट मीन्स अ सेकेंड हाई हैज़ बिन ब्रोकन. ओके, और बेस बनाने के बाद सेकंड हाई तोड़ा है, दैट मीन्स अ डिमांड एफ टी आर हैज़ बीन फाउंड. ओके, सो हम क्या करेंगे, एफ टी आर बनते ही दिस विल बी आवर एंट्री, एज यू नो, एज आई एक्सप्लेन्ड, एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, एंड वी विल गो फॉर एम फॉर 1-3 risk reward trade. Okay, so let's see what happens. At least 1-3, we can also take higher risk reward trades, but we will go for at least 1-3 risk reward. Okay, and हमारी ट्रेड एक्टिव है. Let's see what happens. Completely bullish structure, TP hit. Okay, so this is how the FTR strategy works. आप देखेंगे तो हाई 1 and हाई 2 दोनों के नीचे है FTR जोन, and it is a very good trade, right? So आप ऐसे अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं. And मैं 4 एग्जाम्पल दे चुका हूँ. आई होप दीज आर इनफ and you learned quite a bit from this. And these are the summary of our learnings. Please do not forget these rules. And मैं इनको बोल बोल के नहीं बताऊंगा, तो आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं. And you must follow these rules to trade FTR zones correctly. Okay, and let's end the chapter here and see you in the next chapter. Please study carefully, and if you have any questions, please ask me in the comment box, or you can DM me directly on Telegram or anywhere. The contact information is in description box. So thank you for watching. Like, subscribe and share. Take care.